بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری کلاس 8 اور آج ہمارا ٹاپک پیج نمبر 4 سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم ریڈ کریں گے انویژنز دیٹ ویکنڈ دا سب کانٹیننٹ۔ ٹاپک چھوٹا سا ہے لیکن بڑا ہسٹوریکل ہے، اور عام طور پہ جیسے جیسے ہم بڑی کلاسز میں موو ہوتے ہیں، لائک 9th اور 10th اور ایون اس کے بعد میں بھی جاتے ہیں، اور ہم کچھ کمپٹیٹیو ایگزامز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، تو ان میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا آج تھوڑی سی بیس میں تھوڑی تھارولی اسٹڈی کر لیں۔ چھوٹا سا ٹاپک ہے، اسے تھوڑا ویڈیو کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ نادر شاہ فل نیم واز نادر قلی خان، کے یہ نادر قلی خان اس کا فل نیم تھا۔ 1736 سے لے کے 1741 تک کا یہ ٹائم پیریڈ رہا ہے۔ بیسیکلی صفوی ڈائنیسٹی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بائی پاس کر کے اس نے آفشار ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی، اور شاہ آف دا شاہ یعنی شاہوں کا بادشاہ ٹائٹل نادر شاہ اس نے یہ ٹائٹل اس کا آیا۔ اور نادر شاہ بیسیکلی اس کا ٹائٹل ہے، نام اس کا نادر قلی خان ہے، اور 1736 سے 1741 تک یہ رہا۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ بابر کی حکومت جب یہاں پہ قائم ہوتی ہے، آپ یوں کہیں کہ 1526 سے لے کے اور 1857 تک گورنمنٹ رہی حکومت کی مغلیہ خاندان نے، اراؤنڈ کوئی 300 سال لگا لیں، 330-31 سال کی حکومت کی۔ اس دوران میں جب حالات اورنگزیب کی وفات کے بعد حالات جو ہے نا یکسر چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف علاقے جو دور دراز کے ہوتے ہیں، جیسے آگرہ ہے، اودھ ہے، بنگال ہے، اور دوسرے علاقے ہیں، وہ آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ملک کے اندر انتشار پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں ان کے لیے بڑی بہتر تھی کہ ایسے حالات میں نادر شاہ نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ مغل رولرز کو یہاں سے کوئی خزانے لوٹے جائے، نا کچھ کیا جائے۔ سو he was attracted to the subcontinent due to the weak government of the later مغل rulers، کہ یہاں پہ جو مغل رولرز تھے ان کے ساتھ اس نے فائٹ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کمزور ہو گئی تھی۔ In 1739 he defeated the Mughal easily in the Battle of Karnal، کہ بیٹل آف کرنال کے اندر اس نے بڑی آسانی سے مغل جو حکومت ہے اسے مطلب کر دیا۔ اب جو بیٹل آف کرنال ہے، یہ بیسیکلی کرنال ایک راجہ کرنا ایک ہندو راجہ گزرا ہے، جس نے ایک شہر آباد کیا جو کہ نارتھ انڈیا کی طرف موجود ہے، ہریانہ اسٹیٹ کے اندر ہے اس کا مطلب ایک پرانا نام۔ اور یہ اس سٹی کی سب سے اچھی بات یہ کہ رائس باؤل آف انڈیا کہلاتا ہے۔ اس میں نادر شاہ نے 1739 میں محمد شاہ کو شکست دی۔ اچھا، اس کے اندر بیسیکلی دو حکومتیں، یا آپ سمجھ لیں کہ دو ڈائنیسٹیز، یا آپ کہیں کہ دو اس وقت کی موسٹ پاورفل جو قوتیں تھیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ مغل سلطنت تھی، اور فارس کی طرف سے پرشین آرٹلری جو ہے وہ تھی۔ اچھا، یہ اس میں انہوں نے بیسیکلی اسے ہرا کیسے دیا؟ بات صرف یہ ہے کہ یہ ایسے کیسے ہو گئے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ جو پرشین امپائر ہے، یہ جو نادر شاہ ہے، اس کی پاس اٹرلی کی بڑی پاور تھی، اور یہ بیسیکلی گن پاؤڈر جو ہے نا، ان کو کہا جاتا تھا کہ ویل نون دا گن پاؤڈر امپائرز، کہ یہ نا گن پاؤڈر کے بارے میں بڑا نالج رکھتے تھے، اسے یوز کرتے تھے۔ اور ان کا جو موسٹلی ایران، آذربائیجان، بحرین، آرمینیا، ایون کے بہت سارے علاقوں پر ان کی حکومت تھی، اور اوتمان امپائر نے بیسیکلی ان کو ڈیفیٹ کیا۔ ان کی جگہ پہ مطلب اوتمان امپائر نے اپنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ دا کیپٹل سٹی آف دہلی واز کیپچرڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف پیپلز ور کلڈ، کہ اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ یہ جو لائن ہے یہاں پہ دا کیپٹل آف، دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ کرنال کے اندر تو ان کی بیٹل ہو گئی، یہاں پہ تو انہوں نے شکست دے دی، لیکن پھر یہ دہلی میں کیا کرنے گئے تھے، اور وہاں پہ تھاؤزینڈ آف پیپلز کیوں؟ جب یہاں پہ انہوں نے ون کر لیا، جب یہ جیت گئے، تو انہوں نے جا کے دہلی میں کیوں ہزاروں لوگوں کو قتل عام کیا ہے؟ اس کی تھوڑی سی ہم بیک گراؤنڈ اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے اسٹوڈنٹس، ہوتا یہ ہے کہ جو محمد شاہ ہے وہ ایک مغل حکمران ہے، اور یہ اس کے ٹائم میں حملہ ہوتا ہے یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر نادر شاہ کے ٹائم پہ۔ جب نادر شاہ کے حملے کی اطلاع ملتی ہے
इसको ये जो है मोहम्मद शाह को, जो मुगलिया हुकूमत के उस वक्त के हैं, तो इसने अपने जितने भी स्टेट्स थी उन सबको यूनिट किया। जैसे निजामुल मुल्क को इसने दक्कन से बुला लिया, सादात खान को अवध से बुला लिया, और दूसरा वजीर कमरुद्दीन और खान दौरान को मुकाबले के लिए नहीं, इकट्ठा मतलब इसने फुल फ्लेज पूरी पावर के साथ जो है ना नादिर शाह पे अटैक किया। लेकिन मामला इसके बरक्स हो गया। अब मामला बरक्स हुआ तो नादिर शाह की फतह हो गई, और मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को ये मैसेज दे के भेजा कि भाई अब चूंकि हम हार चुके हैं तो इसके पास चलते हैं और इससे सुलह सफाई कर लेते हैं और मामलात को यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। सो नादिर शाह ने निजामुल मुल्क को भेजा और अगले ही दिन ये खुद भी उसके पास चला जाता है, और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह का बहुत अच्छे से, जो मुगल हुक्मरान है उसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, उसको तख्त पे अपने साथ बिठाया, और निजामुल मुल्क ने नादिर शाह को, यानी जो मोहम्मद शाह मुगलिया हुकूमत का हुक्मरान था, उसने निजामुल मुल्क को जब भेजा तो निजामुल मुल्क ने नादिर शाह को 60 लाख रुपए उस वक्त तावान देकर उसे कहा कि आप प्लीज यहीं से वापस चले जाएं, हम आपको जुर्माना देते हैं या तावान देते हैं, हमारी जान बख्श दे और चले जाएं। जब ये बात तय पाने लगी ना तो हालात को बिल्कुल ही पलट गए। वो ऐसे कि मोहम्मद शाह ने खान दौरान की वफात उस दौरान में ना, जो ये तीन बंदे चार जो उसके मेन बंदे थे ना, वजीर कमरुद्दीन, खान दौरान और निजामुल मुल्क और सादात खान, तो क्या होता है कि मोहम्मद शाह ने खान दौरान की वफात के बाद निजामुल मुल्क को उसकी जगह पे मीर बख्शी का मुकर्रर कर दिया ना, जो इसे अच्छा नहीं लगा। सादात खान की मुद्दत इस ओहदे के आसपास बड़ा इसको ना अटैचमेंट बना के बैठा हुआ था कि मैं इसके साथ अटैच हो जाऊंगा, इस ओहदे को, ये ओहदा मुझे मिलना चाहिए ना। जब खान दौरान की वफात हो गई है तो सादत खान को इसकी जो है ना वो हकदार होना चाहिए था। उसने इसका बदला लेने के लिए ना क्या किया कि नादिर शाह को बताया कि भाई 60 लाख आपको जो तावान मिल रहा है वो बड़ी मामूली सी रकम है, दिल्ली पहुंचो, बहुत बड़ी दौलत है, और वहां पे आके आपको बड़ा कुछ मिलेगा, बहुत कुछ वहां पे जो है ना मिलेगा। अब यूं हुआ कि वो ट्रेवल करके नादिर शाह मोहम्मद शाह के साथ, यानी नादिर शाह ने तो ये था साफेविड डायनेसिटी का, इसने तो जंग जीत ली। मोहम्मद शाह उस वक्त था मुगलिया हुक्मरान, और ये सब साथ होके दिल्ली चले गए। और दिल्ली का उस वक्त का जो सूबेदार होता था उसका नाम था लुत्फुल्ला, और उसने बड़े आराम से, चूंकि अब मुगलिया हुक्मरान साथ है तो उसने बड़े आराम से जो चाबियां हैं वो नादिर शाह के हवाले कर दी। अब नादिर शाह रिलैक्स होके, अभी वहां पे 1-2 दिन ही गुजरे हैं, वहां पे ये अफवाह चल गई, वहां पे ऐसी खबर फैल गई कि नादिर शाह को गोली लग गई है, वो जख्मी हो गया है और अब उसके हालात बहुत पतले हैं, यानी बड़े हालात खराब है। अब ये बात आनन फानन में सारी दिल्ली के अंदर पहुंचती है, तो नादिर शाह के जो सिपाही होते हैं उनके ऊपर दिल्ली वाले यूं समझ लें कि टूट पड़ते हैं, हमला कर देते हैं। बदले की जो शर्मिंदगी की जो आग है उसे बुझाने के लिए उन पे टूट पड़ते हैं। जब नादिर शाह को इस बात का इल्म होता है तो वो क्या करता है, वो दिल्ली के अंदर ना कत्ले आम का हुक्म दे देता है, और एक मोहतात से अंदाजे के मुताबिक कमोबेश को 30,000 अफराद जो हैं वो इसकी नजर हो गए। अब इस जगह पे जाके देखें, एक काम वो था जो 60,000 तावान के बदले उसे वापस भेजा जा रहा था, लेकिन अब देखें एक इंसान की हवस के बदले या एक इंसान के जाती फायदे के बदले कितने हजारों लोग नुकसान में चले गए, फौत हो गए, मारे गए, नुकसान हुआ। अब क्या था कि उस टाइम पे नादिर शाह ने 80 करोड़ रुपए के करीब करीब, तारीख में जो चीज जिक्र आता है ना, मालो असबाब भी लूटा, और शाहजहां का जो तख्त ताउस था वो भी वहां से ले गया और ईरान के लिए रवाना हो गया। और यूं हालात जो है ना वो समझ लें कि तहस नहस होकर है ना, मुगलिया हुकूमत यूं समझें कि इस एक झटके के बाद दोबारा संभल ही नहीं सकी, इकोनॉमिकली वो स्टेबल नहीं हो सकी है, और बड़े हालात जो है ना वो खराब हो गए। तो ये जो लाइन थी जिसको स्टूडेंट्स मैंने यहां से, द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली वाज कैप्चर्ड इन द 1000 ऑफ पीपल वर किल्ड, यहां तक का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये मेन कहानी बेसिकली ये थी जो हिस्ट्री के अंदर मौजूद है।
नादिर खान लेफ्ट द इंडिया, यानी उसने इंडिया छोड़ दिया भाई, 60 की बजाय वो 80 करोड़ लेके निकला। टेकिंग हिम द रिनोव्ड पीकॉक थॉर्न ऑफ द शाहजहां, यानी तख्तो ताउस, वो शाहजहां का जो बड़ा ये जैसे कैप के ऊपर वो लगा हुआ है ना, वो ताज था। दिस इन्वेजन शैटर्ड द मुगल रूलर्स एंड वीकेंड देयर सेंट्रल अथॉरिटी, के इसने ना तहस नहस कर दिया, मुगलिया हुकूमत की कमर तोड़ के रख दी। द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेजन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का इन्वेजन था, जिसमें यूं समझ लें मुगलिया सल्तनत सड़क पे आ गई, मतलब उनके पास रहा कुछ भी नहीं। At the result, the Mughals were the unable to regain this power, के इसके बदले में वो दोबारा ये कुव्वत हासिल ही कभी नहीं कर सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके नीचे एक छोटी सी हेडिंग है अहमद शाह अब्दाली की। बेसिकली अहमद शाह अब्दाली वाज अ यंग एंड टैलेंटेड कमांडर ऑफ द नादिर शाह। ये नादिर शाह का ही एक बड़ा अहम कमांडर था, यंग था, टैलेंटेड था। इन 1739 ही accompanied the नादिर शाह टू दिल्ली, के इसने ज्वाइन किया नादिर शाह को। ही विश टू इनहांस द पोजीशन ऑफ अफगानिस्तान इन कैप्चरिंग द नेबर कंट्रीज, ही फ्रीक्वेंटली इन्वेडेड द पंजाब, कि इसने पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेड्स किए हैं, हमले किए। यानी स्टूडेंट्स ऐसा है कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो यूं समझ लें कि नादिर शाह जब इसकी गवर्नमेंट खत्म होती है 1747 के अंदर, तो क्या होता है कि इसका एक जनरल है अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान में खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर लेता है ना। देखिए 1736 में ये शुरू करता है नादिर शाह, 1741 तक ऑलमोस्ट इसका टाइम होता है। 47 के अंदर ना ये कत्ल हो जाता है। तो इसका एक जनरल है नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली, जो टेक ओवर कर लेता है अफगानिस्तान को और एक इंडिपेंडेंट हुकूमत कायम कर लेता है। अब अहमद शाह अब्दाली जो है बेसिकली ये दुरानी जो फैमिली होती है ना, ये दुरानी फैमिली का सरदार होता है, और क्या करता है कि ये काबुल पे कब्जा कर लेता है, अफगानिस्तान में सल्तनत बना लेता है। लेकिन अफगानिस्तान में सल्तनत बनाने के बाद हर एक बादशाह को ये फील होता है कि पंजाब और दिल्ली पे हमला किया जाए, क्योंकि यहां से बहुत सारे मुगलों को शिकस्त देने के बाद क्या होता है कि यूं है कि यहां से माल असबाब लूटा जा सकता है। जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि जब ये इन्वेड करते थे, तो जो कमरुद्दीन है, जिनका मैंने आपको नादिर शाह के टाइम पे भी जिक्र किया, जिन्होंने मुगल हुकूमत के साथ आके अवध की तरफ से मतलब वो सिपा सालार होके जंग में लड़े, तो वो भी मारे गए। दूसरी दफा ये 1751 में आए, यानी इन्होंने दूसरी दफा हमला किया, शिकस्त की। मरहटों को भी जो है मुगल वजीर अमाउद्दीन मलक जो है वो, और पंजाब में अफगानों से वापस ले लिया, और दूसरा शिकस्त का बदला लेने के लिए दोबारा अहमद शाह ने 1759 में आके हमला किया। मतलब एक दफा इसने पंजाब पे हुकूमत कर ली, दूसरी दफा मरहट्टों ने आके यहां से फिर इनसे हुकूमत छीन ली, फिर ये उसका बदला लेने के लिए 1759 में लाहौर पे फिर आया है, मरहट्टों को फिर इबरतनाक शिकस्त दी, और अहमद शाह अब्दाली वापस अफगानिस्तान चले जाता है। होता ये है, आता है, हमला करता है। कमरुद्दीन जो हैं उनको वो इस हमले की नजर हो जाते हैं, यहां पे अपनी हुकूमत कायम करता है। फिर दूसरी दफा 1751 में आता है, यहां पे 1751 में आने के बाद पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करके जाता है। पंजाब में जब हुकूमत कायम करके जाता है, तो मरहट्टे जो होते हैं वो उठते हैं, और उन्होंने पंजाब से अफगानियों की हुकूमत दोबारा छीन ली। फिर इसका बदला लेने के लिए 1759 में दोबारा आता है, 1759 में दोबारा आता है, और यहां से मराठों को फिर शिकस्त देता है, और उसके बाद ये अफगानिस्तान वापस चला जाता है। यूं हमारी ये जो हिस्ट्री है, यहां से लेके यहां तक का ये टाइम पीरियड होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब डीपली आप इसके बारे में अपने अल्फाज में जैसे चाहें वैसे लिख सकती हैं, आपको आसानी हो जाएगी।